I thought to myself, before he makes it doctor, let me come. Would you please join with me to welcome Reverend David? Okay. What a wonderful joy it is to be in the presence of God with the God's words another time. और फिर से पुनः एक बार आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए कितना ही बड़ी आनंद की बात है मेरे लिए। And really it's a privilege to be here and preach the God's word. और ये मेरे लिए एक अवसर है जहां परमेश्वर का वचन लेकर आके प्रचार करूं आप सबके सामने। And I'm also thankful to a president, a matron, ruling body of our seminary who allowed me to be the part of this ministry and be able to minister the word in this manner. और मैं अपने
प्रेसिडेंट सर का और मैटन मैम का और यहाँ पर जितने भी पाए जाते हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस सेवा में मुझे एक भाग होने का अनुमति दी। And of course, dear pastors, teachers, faculty, non-teaching staff, and all our dear students, Christian greetings to you all in the unique name of our Lord and Savior Jesus Christ. और यहाँ पर उपस्थित जितने पासवान हैं और शिक्षकगण हैं और जितने विद्यार्थी हैं, आप सभी को विशिष्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन देता हूँ। I was about to delve into preparing a sermon about seeing Jesus. और मैं सोच ही रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को देखने पर या उसके ऊपर एक संदेश को बनाऊं। Then I met a dear ma'am, Priya. और मैंने एक मैम से मिला, उनका नाम है प्रिया। And at the moment I met her, she gave me an open window to choose not to preach from the theme that is expected to be preached by students. You can go on whatever topic you want to take. और जैसे उनसे मेरी मुलाकात हुई उसी घड़ी उन्होंने मुझे एक खुली खिड़की दिखा दिया और उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि जो विद्यार्थी प्रचार कर रहे हैं उससे अलग होकर मैं कुछ प्रचार कर सकूं। So I didn't need to look at Jesus now to prepare my message. और मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखने की जरूरत नहीं पड़ी इस संदेश को बनाने के लिए। Meaning to say, I don't have to stick to that topic and I can go on to continue what I started. और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने शुरू किया था वो संदेश को आगे बढ़ाने का मुझे यह अवसर मिला है। Anyway, no messages can be prepared without seeing Jesus. और हाँ, ये सही बात है कि बिना यीशु को देखे कोई भी संदेश को हम बना नहीं सकते। And we've been enjoying students, final years, delivering their messages on the topic. और हम आनंद उठा रहे थे जिस तरीके से जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी आकर यहाँ पर उस विषय के ऊपर प्रचार कर रहे थे। As the brother Yuvraj said, it was like a festival of sermons on seeing Jesus. और जैसे भाई युवराज ने यहाँ आकर कहा कि यीशु मसीह को देखने का जो विषय था उसके ऊपर संदेशों का एक उत्सव मन रहा था। But let me stay focused on the theme that we began in the last message. और मुझे जो विषय मैंने पिछले संदेश में शुरू किया था उसके ऊपर मैं लगा रहूंगा। Would you all, would anyone could remind me the point that we began कोई last message? स्मरण याद दिला सकता है कि पिछले बार का संदेश क्या था? Yeah. People here? Okay. Wow. So I was wondering because brother Roshan wasn't here when I spoke, but he gave the hint. It was everything is new or about newness. और मैं सोच ही रहा था क्योंकि भाई रोशन तो यहाँ थे नहीं लेकिन उन्होंने YouTube से देख लिया और टिप्पणी दे दिया। वो था अपने मन को बदलना या सारी चीजें मसीह में नए होते हैं। And then we're gonna see the second part of that idea. और उसका जो दूसरा भाग है उस विचार का आज हम उसको देखने पाएंगे। When we were looking into newness or the idea of newness, in the first part we saw that what Christ has done to make you new. और जो पहला भाग में इस विषय के ऊपर हमने देखा कि अतीत में आपको नया बनाने के लिए मसीह ने क्या किया था। And through his death or the salvific work on the cross of Calvary, what did he attain to make you new? और उनके मरने के द्वारा या उनके क्रूसित होने के द्वारा उद्धार देने के द्वारा आपके जीवन में उन्होंने क्या किया कि आपको वो नया बना सके। And we all became new creation. और हम सब एक नई सृष्टि हो गए। Hallelujah. हालेलुया। At least 12 people are renewed. और लगभग कम से कम 12 लोग तो नए हो गए हैं। Let me repeat. मैं फिर से पुनः दोबारा What Jesus did on the cross made us renewed in Christ today. और Hallelujah. मसीह ने जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया है उसको मसीह में हमें एक नई सृष्टि बनाया है। Therefore, that inverted comma shouldn't be forgotten that in Christ we are new creation. और इसीलिए इस कथन को ना भूलें कि मसीह में हम नए बनाए गए हैं। Our body is not changed. हमारा शरीर नहीं बदला है। At some point, even our behavior is not changed. और कई बार देखा जाए तो हमारे जो स्वभाव है वो भी नहीं परिवर्तित But something happened in the spirit. परंतु हमारे आत्मा में कुछ ऐसा हुआ। Something happened in our spiritual being. और हमारी आत्मिक अस्तित्व में कुछ हुआ है। Our whole destiny has been changed. और हमारा जो पूर्ण लक्ष्य है वो बदल गया है। And we are new creation in Christ. और हम पूर्णता से एक नई सृष्टि है मसीह में। But thank God for God's word. परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के Story कलाम के लिए। doesn't end there. और कहानी वही अंत नहीं होती। The story of newness or new creation continues. और ये जो नई कहानी या एक नई सृष्टि की जो कहानी है वो आगे बढ़ती जाती है। So, switching from what Christ has done to what we should do.
और मसीह ने जो हमारे लिए किया है उससे लेकर हमें क्या करना चाहिए वहां तक हम आएंगे. And the passage that was read, and the first passage was not quite clear, but the second one, hopefully you could all understood. Romans chapter 12 and verse number 1 and 2. और जो दो शास्त्र भाग हमारे सामने पढ़ा गया था, दूसरा जो भाग था वो थोड़ा स्पष्ट रूप से हम समझ पाते हैं. रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 और 2. And when you read these verses, और जब ये पदंश को आप पढ़ते हैं, the same Paul, और वही पौलुस, same apostle of Jesus Christ, और यही प्रेरित यीशु मसीह का, he urges for something to be renewed. और वो प्रोत्साहित करता है कि कुछ ऐसा चीज है जो हमें नया करना है. Who himself talked about being renewed in Christ. और जो स्वयं कहता है मसीह में नया होने के बारे में. But he pleases now believers to become new. लेकिन अब वो विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि नया बने. So may I read it again? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed, if I may use, to be renewed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. और हिंदी में ये कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. उसको अगर मैं और स्पष्टता से बोलूं तो हमारा मन परिवर्तित करके, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और शुद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. So I have entitled my message based on this scripture. और इस शास्त्र भाग से निर्धारित मैंने आज का जो शीर्षक दिया है, It is mindful metamorphosis of mentality. और वो है मानसिकता का सचेत कायंत्रन. Mindful metamorphosis of mentality. मानसिकता का सचेत कायंत्रन. And why do I say mindful? और मैं मानसिकता से या सचेत क्यों कहता हूं? Because somebody or some believers who are not yet renewed, they have to take conscious decision. और कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो अभी तक परिवर्तित नहीं हुए हैं, वो सचेत निर्णयों को लेने की आवश्यकता थी. So that's the meaning of being mindful. और वो है सचेत की अर्थ. It is not something that God would do for you. और वो ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए करे. It is not something that your pastors would do for और you. ये ऐसा कुछ है नहीं जो पासवान आपके लिए It करे. is not something that your parents would do for और you. ये आपके माता पिता आपके लिए करे, ऐसा नहीं है. You got to be mindful और आपको सचेत होना है to take this step. और इस कदम को बढ़ाने के लिए. And what is that step? और ये कदम क्या है? It's metamorphosis. और ये है कायंत्रन. Metamorphosis, simply put, is something that has to be changed. और कायंत्रन का आसान अर्थ ये है कि ऐसा कुछ जिसका परिवर्तित होना जरूरी है. Some of you may have studied this word in the science class. और कुछ लोग जो साइंस का क्लास है उसके ऊपर अध्ययन किए होंगे. And there is a small clip towards the end of my message I would like to show as an illustration. और छोटा सा मेरे पास क्लिप है, जब मैं अंत में आऊंगा आपको उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहूंगा. And where it has to be done? और ये कहां पर होना है? It is in the mentality. और ये हमें मानसिकता में करना है. It's in the mindset. और हमारी जो विचार धारणा है, It's in the perspective. और हमारा जो आवश्यकता है या It's हमारा जो in दृष्टिकोण है, it's in a way where you think. और जो विचार धारणा आप पेश करते हैं, There has to be the mindful metamorphosis. और वहां पे आपको सचेत कायातरण की करने की Shall we जरूरत है. get into the message? आइए हम संदेश में आगे बढ़ेंगे. Proposition with which I stand here today. और जो मुख्य संदेश जिसके सामने मैं आपको रखना चाहूंगा या प्रस्ताव जो Let रखना me read it out to चाहूंगा, you. वो आपके सामने पढ़ना चाहूंगा. After Christ's work of renewing believers, और मसीह का कार्य जो विश्वासियों को पुनर् नया बनाने के बाद, after Christ's work of renewing believers into new creation, और विश्वासियों को नया सृष्टि बनाने के बाद, it is believers' accountability. और ये विश्वासियों की जिम्मेवारी है. Let me repeat, it's believers' accountability. मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, ये विश्वासी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, To be transformed by metamorphosis of their minds. और आपका सचेत मानसिकता को
कायातरण करने की आवश्यकता है। It's what Christ has done on the cross of Calvary और- is the finished work of Christ. और कलवरी क्रूस के जो परमेश्वर ने किया हमारे लिए, यीशु मसीह ने वो समाप्त कर दिया उन्होंने। And now it is believers' accountability on the flip side of the coin. और जब हम सिक्के को पलटते हैं तो वो अब विश्वासियों का जिम्मेवारी है Accountability to transform themselves by the process of metamorphosis into their minds. और ये ऐसा कार्य है जहां कायातरण की प्रतिक्रिया के द्वारा आपको परिवर्तित होना है। Now, book of Romans is one of the most fascinating piece of literature in the New Testament, or I may say in entire Bible. और बाइबल में कहूं या नए नियम में कहूं तो जो रोमियो की पत्री है वो बहुत ही विशिष्ट पुस्तकों में एक है। One of the fantastic theological literature that has been ever produced among the mankind. और मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किए हुए जो धर्म वैज्ञानिक शिक्षकों या लिखी हुई गई पुस्तकें हैं, सबसे शानदार किताब है। No matter how much I would appreciate today, I will come short to the standard and quality with which it has been written. और जिस तरीके से या जिस क्वालिटी से यह पुस्तक लिखा गया है, मैं जितना भी कोशिश कर लूं या तारीफ कर लूं उस तक नहीं पहुंच सकता जिस शानदार रीति से यह And it लिखा is गया so है। pivotal for the believers और ये विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। because it addresses the concept of sin, और क्योंकि ये जो पाप का विचार धारणा है हमारे सामने पेश करता है, salvation, और उद्धार का grace, और अनुग्रह का, faith, विश्वास का, righteousness, धार्मिकता का, Christian living, मसीह जीवन का, and what not. और क्या नहीं। Therefore, it is understood as a perfect interpretation of the Gospels. और इसीलिए जो इसको हम मानते हैं जो सुसमाचार का एक सटीक विवरण है। Gospels are historical narrative. और जो सुसमाचार है, इंजील के पुस्तक जो है वो And- एक ऐतिहासिक पुस्तक के द्वारा पेश किए And जाते हैं। Romans put all the letters together are the interpretation of the Gospels. और ये जो रोमियो की पत्री या बाकी पत्रियों को हम मिलाकर देखते हैं तो उसका जो व्याख्या है वो पेश So करता among है। all the letters which has interpreted the teachings and doctrines or the motive, theological motive of Jesus Christ so well is the book of Romans. और जो यीशु मसीह के सुसमाचार का विवरण और व्याख्या जितने पत्रियों ने किया है उसमें सबसे श्रेष्ठ विवरण रोमियो में पाया जाता And है। Paul wrote it in his third missionary journey at about 57 AD. और यह जो लिखा गया है वो समय यह है कि 57 मसीही में लिखा गया है। ईस्वी 57 ईस्वी। ईस्वी में लिखा। Coming to chapter 12 now, और जब हम 12वां अध्याय में आते हैं what we see is a great change in his writing. और हम जब यहां पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन के बारे में। As you all know that the book of Romans have 16 chapters. और आप सब जानते हैं रोमियो की पत्री में अध्याय 16 है Until chapter 11, और 11वां अध्याय तक Paul is thoroughly theological. और पौलुस जो है वो पूरी तरह से धर्म वैज्ञानिक शिक्षाओं को प्रदान करता है। He takes believers to the depth of the theological truths to interpret and help them understand how they were sinner and what Christ has done to redeem them. और ये जो उस अध्याय तक धर्म वैज्ञानिक गहराइयों तक लेके जाता है ताकि एक विश्वासी या अनेक विश्वासियों को यह समझा सके कि यीशु मसीह ने उनको नया जीवन देने के लिए कितना हद तक पार किया है। And now when we come to chapter 12, और जब हम 12 अध्याय में आते हैं now the tone changes. और उसका जो बोलने का तरीका है वो बदल Now जाता the approach changes. है और उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। Now he is no more theological. अब वो दृष्टि धर्म वैज्ञानिक रूप से पेश नहीं करता। Now he comes to practical. अब वह व्यवहारिक रूप में आ He जाता said है। what God has done, what Christ has done. Now he tells what you got to do. अब वो कहता है कि मसीह ने जो किया है किया, लेकिन आपको क्या करना है। So from chapter 12 down till chapter 16, he talks about the practical notions which believer have to follow in their life. तो 12 अध्याय से 16 अध्याय तक एक विश्वासी के व्यवहारिक विचारों को किस तरीके से पेश करना है वो हमें हमारे सामने रखता we है। could spend some more time on the history of this writing, but let's move ahead to the main outline of our message this morning. और काश मेरे पास समय होता तो मैं और ऐतिहासिक रूप से आपको और समझाता, लेकिन मैं जो विचार धारणा पेश करना चाहूंगा So उसके two सामने verses आएंगे। that we have taken for this morning's meditation और- have more or less 4 major ideas. और 4 विचार धारणा इन 2 पदों के द्वारा आज सवेरे में आपके सामने Let me रखना read चाहूंगा। those out to you, and one by one we should briefly look into it. और चारों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और एक एक करके हम और अंदर जाएंगे The very first idea in those 2 scripture is the response to God's mercy. और दोनों पद अंश में जो पहला विषय हमारे सामने रखता है
वो है परमेश्वर की दया का प्रतिक्रिया दिखाना या उत्तर देना। The second one is to reject conformity. जो दूसरा है वो सदृश्यता को इंकार करना। Third, renew your mind. तीसरा, मन को परिवर्तित करना या रूपांतरित करना। Fourth and final is the reward. और चौथा और अंतिम बात उपहार। And what is the reward? और वो वरदान क्या है, उपहार Is क्या the है? fact of realization of God's will in your life. और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में समझने का जो सच्चाई है। When you do the first three, you get the fourth reward. The fourth one is as a reward. और जो तीन चीजें, जो पहले तीन चीजें अगर आप उसको करते हैं तो चौथा आपको उपहार के तौर पे दिया जाता And है। we all like rewards. और हम सब उपहार को पसंद करते When we हैं। do our homeworks, when we do our assignments, when we do our job, we all like to get the reward. और हम जब अपने दैनिक कामों को करते हैं, होमवर्क हो, असाइनमेंट हो या हमारा जो दिया गया है कार्यों को करते हैं, तो हमें उपहार पाने का एक अपेक्षा रहता And है। you're gonna have it today. और आपको आज भी ये मिलने In वाला fact, है। we all gonna have it today. और सच कहूं तो आप सबको मिलने Those who वाला है। really wanna have, say hallelujah. और जिस चीज को विश्वास है कि आप पाने वाले, बोले हालेलुया। I mean, pretty much all. Now let's go to the first one, is the response to God's mercy, or to respond God's mercy. और देखिए, पहला विषय को हम देखेंगे कि परमेश्वर की दया का उत्तर देना। Paul begins his chapter with very, requestful manner. और जिस अध्याय को वो शुरू करता है, जिस तरीके से, वो एक विनम्रता या एक विनती करते हुए He शुरू says, करता है। I beseech you, और वो कहता है, मैं आपको विनती करता हूं, I request you, और मैं आपको विनती करता हूं। and by reminding something, और कुछ स्मरण दिलाता है हमें। he reminds believer of God's mercy. और वो दया, परमेश्वर की दया के बारे में हमें स्मरण दिलाता It है। means what he's going to say, he's preparing believer on the platform of God's mercy. और जो चीज वो कहने जा रहा है, उसके लिए विश्वासियों को परमेश्वर की दया के ऊपर उनको तैयार कर रहा He's है। not going to say something which he is expecting believer to obey or follow on the basis of the credibility of Paul. और जिस तरीके से पौलुस का जीवन है, उसके ऊपर निर्धारित विश्वासियों को कुछ ऐसा चीज नहीं बता रहा To follow. उसको अनुकरण करने के लिए। But he's saying people to follow what he's about to say is because of God's mercy. और जो चीज वो विश्वासियों को पालन करने के लिए कह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया के हेतु कह रहा Because है। up until what you have seen, what you have experienced, what God has done is only because of God's grace. और क्योंकि आज तक या तब तक जो कुछ भी विश्वासियों ने देखा है और अनुभव किया है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया के हेतु है। And if God has shown so much of His grace and given so much of His mercy, now what you got to do is on the basis of that. और परमेश्वर ने अगर हमें बहुतायत से अनुग्रह और दया दिखाया है, तो आप जो करने वाले हैं उस पर निर्धारित है। And it's very important for us to understand the fact of God's mercy in this morning. और आज परमेश्वर की अनुग्रह का सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। Do not change yourself because Pastor Nikhil is preaching. और आप अपने आप को इसीलिए रूपांतरित या परिवर्तित ना करें क्योंकि पास्टर निखिल आपके सामने Do प्रचार कर not रहे हैं। change yourself because Dr. Thomas or your pastor is preaching or asking you. और आप इसीलिए रूपांतरित या परिवर्तित ना हो क्योंकि डॉक्टर थॉमस या आपका पासवान आपको कह रहे हैं Do करने not के लिए। change yourself because of Apostle Paul, he's saying something to you. और अपने आप को इसीलिए ना बदलें क्योंकि पौलुस कुछ कह रहा है आपको करने के लिए। But change yourself because God has given His grace to you. लेकिन आप इसीलिए अपने आप को बदलें क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा कहता And है। there is only one way you can respond to God's grace. और एक ही तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह का उत्तर दे सकते हैं, Is by obeying what follows. और उसके बाद जो आता है उसका अनुकरण करने के द्वारा। Because he says that the Greek word that is used for sacrifice, that he says further, is thaisia. और जो सैक्रिफाइस या बलिदान का जो यूनानी शब्द है जो वहां पे इस्तेमाल किया गया पौलुस के द्वारा, वो है थाइसिया। And thaisia literally means complete offering. और उसका सटीक अनुवाद करेंगे तो एक परिपूर्ण बलिदान के तौर पे देख Because सकते in हैं। this passage he talks about true worship or reasonable worship. और इस शास्त्र भाग में वो एक सच्ची आराधना के बारे में And बताता for है। sure he is borrowing from the Old Testament the idea of sacrifice. और हम देख सकते हैं कि ये जो विचार है, ये बलिदान का विचार वो पुराने नियम से लेकर आ रहा है, Where the individual who has sinned
expected to offer or demanded by the law to offer a sacrifice. जहां एक व्यक्ति जो पाप करता है उसको निर्धारित किया जाता है कि वो पाप का क्षमा पाने के लिए कुछ बलि चढ़ाए, But that sacrifice, before it is offered, it has to be killed. और वो बलिदान चढ़ाने से पहले उसको मार डालना आवश्यकता है। It means it was dead sacrifice. और वह जो था वो एक मृतक बलिदान था, ये मरा हुआ It was बलिदान। dead. वो मरा हुआ It was killed. और वो मारा गया, Or to say it was murdered. और- Finish, chapter close. और उसको कहें तो उसका खेल खत्म या उसका घात कर दिए। Quite contradictory to that concept, Paul is talking living sacrifice. और उसका विरोध भाषा में वो कहता है कि आज जो बलिदान है वो एक जीवित बलिदान है, In OT it was dead. और पुराने नियम में वो एक मरा हुआ But बलिदान। now if something has to offer, is you yourself as an individual believer in Christ living sacrifice. और आज आपको बलिदान के रूप में कुछ चढ़ाना है तो वो आप और आपको एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है। Thaisia, which is the complete sacrifice in terms of New Testament writing, expects you not to offer something which is dead, but to something that is living, which is you yourself. और जो ताइसिया शब्द है वो हमें यह बताता है कि परिपूर्ण बलिदान चढ़ाना है, जिसका तात्पर्य यह है कि आपको एक मरा हुआ बलिदान नहीं लेकिन एक जीवित और भावती बलिदान को It चढ़ाना doesn't mean है। you take yourself and go to altar. और इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को लेके जाओ और बलिदान Now the चढ़ाओ। larger meaning of that word, और इसका एक व्याख्यात अर्थ यह है because Paul is quantifying that idea with true worship or reasonable worship. और वो जो विचार धारणा है वो कैसे पेश करता है, एक सच्ची आराधना के तौर पे पेश करता In है। Hindi that word has come up. What is that word? Sachi Aradhana, right? That word is true worship. और यहाँ पे देखा जाए तो आत्मिक सेवा या सच्ची आराधना कहता And है। it goes quite closely with the idea that was presented by Jesus Christ in John chapter 4. और यह जो विचार धारणा है कुछ करीब करीब जो यीशु मसीह ने विचार धारणा पेश किया था आराधना के ऊपर यूहन्ना 4 अध्याय में, उसके साथ मिलता जुलता है। Jesus said that you would worship me, or you can worship me only in the truth and spirit. और यीशु ने कहा कि आपको मुझे आराधना करना है तो सिर्फ आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकते It हैं। was not the singing of the songs. और ये गीतों का गाना नहीं है, It was not the gesture or posture that you make when you come to the assembly or among the saints of God. और जहां पवित्र लोगों के सामने या सभा में आकर जिस तरीके से आप करते हैं वो नहीं है। It was 24/7, 365 days of the year is through your life you gonna give a reasonable service. और ये 7 दिन 24 घंटे 365 दिन जीवित बलिदान जो आप प्रकट करते हैं उसको बताता है। And the word that he uses, holy and acceptable, is something that is used, hagin, eutreston. Hagin. हैगिन जो शब्द है वहां पे यूज करता है वो यह दिखाने के लिए पवित्र और स्वीकार योग्य है, That means to say that separated. जिसका अर्थ यह है कि आप अलग किए गए। And that brings us to second point. और वो हमें दूसरा विषय में लेकर आता Our है। second point is reject conformity to the world. और दूसरा विषय यह है संसार का सदृश्यता को इंकार करना। Now how can you worship in truth and spirit? और कैसे आप आत्मा और सच्चाई में आराधना कर सकते हैं? Not by singing 111 songs. और यह नहीं कि 111 गीतों को गाएं, Not by lifting your hands in the worship. और आराधना अपने हाथों को उठा के नहीं, Not by jamming your guitar or keyboard. और यह नहीं कि गिटार और कीबोर्ड बजा दें। Definitely those are the parts of our corporate worship. हाँ, सच बात है कि वो मिलकर करने की आराधना का एक भाग है। The follow-up steps are very, very important in order for us to understand that how can we become living sacrifice or the true worship in God's presence. जो आने वाले जो कदम है या पड़ाव है उसके स्टेप्स को समझना बहुत ही जरूरी है कि हम आत्मा के साथ एक सच्चे आराधक कैसे बन It सकेंगे। is to reject the conformity to the world. और वो यह है कि संसार की सदृश्यता को इंकार करना। Now, the church at Rome had believers comprised of Jews and Gentiles. और रोम में जो कलीसिया पाई जाती थी वहां पे एक मिश्रित विश्वासियों को देखते हैं जो यहूदी और बाहर के अन्य जाति There were पाए जाते थे। Christians who came to faith from Jewish community, and there were large part of Christian who came to faith from a Roman or Gentile community. और देखा जाए तो ऐसे मसीह थे वहां पर जो यहूदी से परिवर्तित हुए थे, और ऐसे भी मसीह थे जो रोमियों से या अन्य जातियों से आए थे। So
It was after coming to faith, they had high probability that they would fall back to their worldly patterns. और जब वो परिवर्तित होके आए, एक ऐसी महान संभावना थी कि वो वापस अपने संसार के सदस्य हो जाएं। No doubt they will come to church. हाँ, कोई संदेह नहीं है कि वो आराधना They में will आएंगे, worship God. वो कलीसिया में आके परमेश्वर They की read आराधना करेंगे scripture. और वो वचन को पढ़ेंगे They partake in the breaking of bread. और वो रोटी तोड़ने में भागी होंगे। But when they go back to their homes or their native places, लेकिन जब अपने वापस गांव में या शहर में या घर में वापस जाते they हैं would continue to retain their old lifestyle or worldly patterns. और पुनः रीति से जिस तरीके से वो पहले जीते थे वैसे ही वो जीना शुरू कर देते थे। It means they would show spirituality when they come for the fellowship, but the moment they are out, they are just like another Roman man or woman. और इसका अर्थ यह है कि जब वो सभा में या कलीसिया में आते थे तब वो प्रकट करते थे कि वो परिवर्तित हो गए, लेकिन जैसे वहां से निकले वो एक रोमी बन जाते थे, यहूदी बन जाते थे। Therefore, Paul had to beseech these believers who are already believer, born again in Christ, new creation by the work of Christ, but have not changed themselves into the Christ likeness. और इसीलिए पौलुस ये बात को कहना बहुत जरूरी था कि जो विश्वासी थे, जिसका मन परिवर्तित हो चुका था, लेकिन वापस उसी पुराने तरीकों से जीने लगते थे। And it is very important for all of us, before we understand the concept of worship or try to make ourselves living sacrifice, we have separated ourselves from the world. और ये बहुत ही महत्वपूर्णता से हमें समझने की आवश्यकता है कि हम आराधना में आने से पहले, आराधना करने से पहले, And therefore, it is repeatedly said that we are from the world, but we are not of the world. और इसीलिए बार बार दोहराया जाता है ये बात को कि हम संसार के हैं लेकिन संसार की सदस्य नहीं हैं। We are from the world, but we are not of the world. हम संसार से हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। And that brings us to the third request, और वह तीसरी विनती तक हमें पहुंचाता है, is to renew our mind. वो है मन को परिवर्तित And करना। that point is actually thirst of my message in this morning. और यह जो विषय है वो मेरा मुख्य है, इस संदेश का मुख्य वचन है। And after what not to do, और वो जब कह दिया उसने कि क्या क्या नहीं करना what है, not to do is not to conform to the world or क्या worldly नहीं patterns. क्या नहीं करना है, उनके तौर तरीकों से और उसकी संसार की सदस्यता से हमें मिलना नहीं है। Now he says what to do. और अब वो कहता है हमें क्या करना है, What not to do, then what to do. और क्या नहीं करना है तो क्या करना है। And he says what to do. और वो कहता है क्या करना है, But be transformed by renewing your mind. और अपने मन को परिवर्तित करके बदल जाएं। Now, how can you renew your mind and what is renewing mind? और अपने मन को बदलना या कैसे अपने चाल चलन को बदल सकते हैं। You all will agree with me और आप सब हाँ बोलेंगे मेरे साथ that human mind is a battleground of ideas. और आप सब इस बात से सहमति दिखाएंगे कि जो इंसान का मानसिकता है या जो मन है वो एक युद्ध केंद्र जैसा है। Just now when you are listening to me, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं many of you are battling in your brain. और कई लोग आपके दिमाग में पीछे हट रहे हैं, Some are battling between the message being spoken and thought about their house. और आप इस विचार धारणा से लड़ रहे हैं और वापस अपने घर में पहुंच गए होंगे। Some of you are battling between the listening of my message and preparing your assignment. और कुछ लोग आप मन के साथ लड़ रहे हैं और संदेश भी सुन रहे हैं लेकिन असाइनमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि उसको कैसे पूरा करें। Some of you are having battle between listening my messages and keeping yourself awake. और कुछ लोग आपकी मानसिकता में लड़ रहे हैं कि संदेश को तो सुनना है लेकिन जाग के कैसे रहे, ना सोएं। Some of you are battling between listening my message and thinking about some of your old lives. और आप में से कई लोग युद्ध चल रहा है आपके मन में संदेश सुन सुनकर, लेकिन आपके पुराने जीवन के साथ लड़ रहे हैं आप। And of course, teachers, faculties who are sitting here, they're battling between listening my message and preparing their next message. और हाँ, जितने यहाँ पे शिक्षकगण पाए जाते हैं वो भी मन में लड़ रहे हैं, जो संदेश मेरे सुन रहे हैं और अपना आने वाला संदेश की तैयारी भी कर रहे हैं। So mind is pretty much a battleground of ideas. और जो मानसिक रूप से देखा जाए हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, विचारों का एक लड़ाई है या युद्ध केंद्र है। Therefore, God tells us to change our mind. और इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन को बदलो। It means to have Christian thinking.
और ये इसका मतलब यह है कि मसीह It विचारधारा को means पेश to have करना, godly thinking. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का विचारधारा को It पेश means to करना। have a biblical thinking. इसका मतलब यह है कि बाइबल निर्धारित या आधारित विचारधारा Because your रखना। mind is a seat for thoughts and belief. और क्योंकि आपका जो मन है विचारधारा और विश्वास का एक बीज है, It's a seat of emotional regulation. और एक ऐसा स्थान है जहां आपको नियम और कानून दिखाता It's a है, seat of focus and concentration. और आपको जो कंसंट्रेशन करने का या मन लगाने का जो स्थान है, एकाग्रचित. एकाग्रचित का मन है या स्थान है। Your mind is a seat of memory and learning. और जो मन है आपका स्मरण शक्ति का और सीखने का एक स्थान है। Your mind has several important, or I can say the most important activity that you as a human will ever do. और एक इंसान होने के नाते सबसे एक सक्रिय कार्य जो आप करते हैं वो आपका मन के द्वारा करते And हैं। therefore a lot of theologians describe the concept of salvation like this. और इसीलिए अनेक धर्म वैज्ञानिक जो उद्धार शास्त्र के ऊपर ऐसा पेश करते हैं उनका टिप्पणी को, Salvation comes to you in parts. और जो उद्धार आपके पास भागों में आता है, It begins from your spirit, और वो आत्मा से शुरू होता है, goes to your soul, वो प्राण में प्रवेश करता and है, ends with your body. और आपके देह में पूरा होता है। You are saved by the salvific work of Christ in your spirit. और आपके आत्मा में यीशु मसीह का उद्धार कार्य के द्वारा बचाए गए या You are उद्धार पाए, justified. और आप धर्मी ठहराए गए. धर्मी ठहराए गए। Then you move to the second part where you are sanctified by renewing your mind every day, or renewing your soul every day. और दूसरा भाग में आप तब आ जाते हैं जब आप हर रोज अपने प्राण को या अपनी विचारधारणा को नया करते हैं और That is sanctification. पवित्रकरण हो जाते हैं या शुद्धिकरण हो And जाती then है। eventually when Christ would return, और धीरे जब यीशु मसीह आएंगे वापस, your physical body, which will be transformed into glorified body, and you receive the final package of your salvation. और अंतिम भाग जो उद्धार का है, जब यीशु मसीह आएंगे तो महिमामय शरीर में हमें मिलने सकेगा। Justification, sanctification, and waiting for glorification. और धर्मीकरण, उसके बाद शुद्धिकरण, और उसके बाद महिमाकरण। So now the phase of your life which plays a pivotal role in the project of salvation is your mind. और जो स्थान उद्धार के परिवर्तित होने के लिए जो मुख्य केंद्र है वो आपका मन है। I'm running out of my time. Let me quickly go to the next point. और मैं समय से बाहर जा रहा हूं, इसीलिए दूसरा विषय में आ जाऊंगा। It talks about metamorphosis because the big word you saw in the title. और आपने शीर्षक में ही देख लिया, कायातरण, कायाकल्प, कायाकल्प, कायांतर, कायांतर, रूपांतरण. यस, हालेलुया। In the Bible you have this word only 3 times. और बाइबल में सिर्फ 3 बार इसको आप पाते In हैं, entire Bible you have this word in the Greek being used only 3 times. और पूरे बाइबल में ये यूनानी शब्द को 3 बार यूज करते हुए देखते The हैं। first time it is used in the gospel according to Matthew chapter 15 where Jesus goes to the Mount of Transfiguration. और वहां पे जब मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय जहां रूपांतरण होने के लिए यीशु मसीह पर्वत पर जाते हैं, And there the word is used that Jesus transfigured. और वहां पे वो शब्द हुआ है कि यीशु मसीह रूपांतरित हुए, Jesus metamorphosis. और यीशु मसीह कायांतर. कायांतर हुए। The second time it is used in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. और दूसरी बार इस्तेमाल किया गया है वो है 2 कोरिन्थी 3:18, Where Paul in the same idea with different vocabulary talks about that you all needs to be changed in the image of Christ. और वहां पे एक दूसरा शब्द को लेकर आके विचारधारा को पेश करता है कि आप मसीह के मन में परिवर्तित होना है। Metamorphosis into the image of Christ. और ये मेटामॉर्फोसिस मसीह के देखने में या मसीह के समांतर में बदलना है। And third and final is this passage. और तीसरा और अंतिम बार जो प्रयोग किया गया The है, word इस you शास्त्र see, में। renewing of your mind, और ये जो शब्द है मन का परिवर्तित it होना, is metamorpho, और ये जो यूनानी शब्द है मेटामॉर्फो, which signifies a profound transmigration or transformation of your mind. और यह दिखाता है कि एक घनिष्ठ परिवर्तन या रूपांतरण, It could be both physical and spiritual or cognitive. या ये सामूहिक या शारीरिक और आत्मिक परिवर्तित को प्रकट कर सकता है। Manasik, even मानसिक। cognitive changes. The term implies a change that is not merely superficial, but it involves essential alteration.
और ये एक अलौकिक विषय को नहीं पेश करता, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत परिवर्तन है उसको पेश करता है। change in your nature, आपके स्वभाव में change परिवर्तन, in your character, आपका चरित्र में and परिवर्तन, this both cannot happen unless there is a change in your thinking. और ये दोनों तब तक संभव नहीं है जब तक आपका विचार में परिवर्तन ना हो। Because your thinking makes who you are. और आपका विचार धारणा यह दिखाता है कि आप कौन हैं, Your thinking decides who you will become. और आपका विचार धारणा जो है वो तय करेगा कि आप क्या करने वाले हैं या क्या बनने वाले हैं। Because thinking is also a seat of emotion. क्योंकि जो विचार धारणा या सोचने की क्षमता है वो एक ऐसा स्थान है जो निर्धारित करता है कि आप क्या करने when वाले the हैं। temptation comes to your heart, it is actually in your mind. और जब प्रलोभन आपके मन में उठता है वो अस्तित्व कहां पर है, मन में है। To actualize that concept is in the hand of mind, और not hand of this hand. और उसको पूरा करने के लिए उसका निर्णय कहां है, हाथों में नहीं, मन में है। You think in your hand is the power to actualize the concepts? No. और अगर आप सोच रहे हैं कि हाथ के द्वारा जो प्रलोभन है उसको पूरा कर सकते हैं, नहीं। So temptation came to your mind, but to actualize it is determined by your thinking, by your mind. और प्रलोभन आपके जीवन में आता है मन में, दिल में, और आपके हाथ के द्वारा पूरा नहीं होता, लेकिन आपके दिमाग या मन के द्वारा पूरा होता है। Therefore, Bible emphatically says that renew your mind. और इसीलिए स्पष्ट रूप में बाइबल में लिखा है कि अपने चाल चलन को या अपने स्वभाव को बदलो। And therefore, Bible several passages you could see repeatedly these things are echoed. और बाइबल में अनेक बार दोहराया जाता है और दोबारा सुनाया जाता है कि हमें बदलना है। Set your mind on things above. और ऊपर जो चीजें हैं या स्वर्गीय चीजें के ऊपर अपने मन लगाओ। Mind governed by spirit of life has peace. और जो आत्मा के द्वारा निर्धारित किया जो मन What है you think you are, और जो आप सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। let the new mind be in you which was also in Christ Jesus. और वही नया मन जो मसीह में था आज आपके अंदर हो जाए। Nowhere it says spirit, कहीं भी आत्मा नहीं लिखा गया है, nowhere it says body. और कहीं भी देह या शरीर नहीं It कहता है। says about the change of your mind. और यह आपका नया मन के बारे में कहता And है। allow me to conclude with the final point. और मुझे अनुमति दें कि अपनी अंतिम विषय के द्वारा When मैं you do this अंत करूं। three, और जब ये तीन चीजें आप करते you हैं, have a reward. आपके पास एक उपहार And है। what is that और reward? वो उपहार क्या है? The final point, the clause of our second verse says that you will know the perfect will of God. और जो दूसरा भाग का अंतिम लाइन में कहता है आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का अनुभव मालूम करते रहें। Some translation says prove, some says test, some says approve. और कुछ अनुवाद में प्रमाणित करना या निर्धारित करना या अनुभव से मालूम करना कहता है। We all wonder हम सब सोचते हैं about one thing, एक बार एक चीज के बारे में, that what God's will is in my life. परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे As जीवन you में। sit here, some of you are still wondering, what am I going to do after BTH? और अनेक लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं बैठ के ये सोच रहे हैं कि BTH कंप्लीट Some करने of के you बाद sit मैं here क्या and करने wonder, वाला हूं? what am I going to do after my MDiv? और मैं MDiv के बाद क्या करने वाली हूँ, क्या करने वाला हूँ, Some ये of you सोच रहे sit here and होंगे। wonder, what is the plan of God in my life? और ये सोच रहे होंगे आप सबकी परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन Among में। several options that I could give you, let me say this to you. और मेरे पास अनेक संभावना है आपको देने के लिए, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा, Have you renewed your mind? क्या आपने अपना मन को परिवर्तित किया? If you have, अगर आपने किया है, God's will is revealed to you. और परमेश्वर की इच्छा आपके सामने पेश किया जाएगा The या कर greatest दिया of गया है। all the confusion, the greatest of all the confusions you have is knowing God's will be revealed to you if you only renew your mind. और आपके जितने महान उलझन और जितना कंफ्यूजन है वो सबसे अगर आपको उत्तर पाना है वो है अपने मन को परिवर्तित करने के The Greek द्वारा। word that is used here to test, approve, prove or know is the dokimazin. और जो यूनानी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया इन सारे अर्थ को समझाने के लिए वो है डोकिमाजीन। And dokimazin means to know, find and know. और डोकिमाजीन का मतलब ये है पाना और जानना। So you want to know, but your rational or let's say your natural mind or sinful mind is a great hurdle for the same. आप खोज में लगे हैं और जानना है, लेकिन कहना चाहेंगे कि आपका जो मानसिक या एक नेचर है या आपका जो मनुष्यत्व है वो एक
बर्डन बन गया है। You are praying, you are asking, you are going to prophets, you are going to men of God to know that what is the will of God for my life. और अनेक भविष्यवक्ताओं के पास और बड़े बड़े परमेश्वर के दास के पास जाकर परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है जानने की कोशिश कर रहे But हैं। you are not able to know. You know why? Because the mind is not renewed and body is not subdued. लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारा शरीर नियंत्रित नहीं किया गया है और हमारा मन परिवर्तित नहीं किया गया है। Paul urges to church at Rome. पौलुस कलीसिया जो रोम में पाई जाती है उनको प्रोत्साहित करते And हैं। this morning the word of God through the Spirit of God urges to our community. और आज सुबह हम सबको परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित करती है। Let us for a moment respond to the God's mercy. और एक घड़ी ऐसा ले लें कि हम परमेश्वर की अनुग्रह का उत्तर दें। Let us reject the worldly conformity. तो आए संसार की सदृश्यता का इनकार कर दें। Don't become like world. संसार के सदस्य ना बने Don't talk like world. और संसार के Don't सदस्य के तरफ dress- पे ना बात करें। Don't dress like world. उनके जैसा वस्त्र को ना पहने Don't have likes, dislikes like world. और उनके जैसे इच्छाएं और जो रखते हैं वो ना करें। So to say, do not have any worldly patterns in your life. आसान तरीके से कहें कि संसार की कोई भी तौर तरीके अपने जीवन में ना रखें। Renew your mind. आपके मन को परिवर्तित करें। And finally, which I explained to you, realize God's will in your life and और- which is the reward for you. और आखिरी बात यह है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है उसको जानना जो हमारे लिए उपहार है। Let me share this story with you. एक छोटी सी कहानी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। There was a small caterpillar. By the way, caterpillars are always small. There was a small caterpillar named Mark. Mark. एक कीड़ा है Illy. इल्ली जिसका नाम है मार्क। And then he was, caterpillars are always slow, very slow. He was moving or crawling around the jungle. और इस कीड़े को देखेंगे तो हमेशा वो धीरे धीरे रेंगते हुए जाता है और जंगल को पार करता है। And one day he sees butterfly. और एक दिन वो Butterfly. ततरिया को देखता है, तितली. तितली को देखता है ततैया, बाप रे, मैं डर गया. Let me close this. He sees butterfly और वो तितली को देखता है and he goes and asks him, how have you become so beautiful and magnificent and so quick and swift? और वो जाके उस तितली से पूछता है कि आप इतने खूबसूरत, इतने तीव्रता और शीघ्रता से कैसे परिवर्तित हो As you गए। listen to me, please look into that video. और जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ऊपर भी देखें। That butterfly responds to that caterpillar. और यह जो तितली का प्रत्युत्तर क्या है ईल के लिए। He says to that caterpillar, और वो कहता है उस ईल को, you can become like me आप भी मेरे जैसे बन सकते हैं if you only obey what God has made you for. और आपके लिए परमेश्वर ने क्या बनाया है उसका आज्ञा पालन करें तो काफी है। If you obey for which God has created you. और जिस कारण से परमेश्वर ने आपको बनाया है उसका पालन करें। First you have to have patience. पहला आपको धीरज बनाए रखना पड़ेगा। First you have to obey, then you have to have patience. पहला आज्ञाकारी होना है, दूसरा धीरज धरना है, Then you have to stay in a place. तीसरा एक स्थान में टिकना है, And you have to change yourself. चौथा आपको परिवर्तित करना है, You have to बदलना है। allow Holy Spirit to work in your life. और पवित्र आत्मा को अनुमति दें आपके You जीवन have में to कार्य allow करने के लिए। God's word to form Christ in you. और परमेश्वर का वचन को अनुमति दे कि And मसीह को आपके जीवन gradually में when बना you दे। go through this painful process of metamorphosis, और धीरे धीरे एक रूपांतरण का प्रतिक्रिया में आप जैसे आगे बढ़ते and हैं gradually you will struggle, you will fight, you will strive. और इस दौरान आप लड़ेंगे और बहुत सारे दर्दनायक घटनाओं से जूझेंगे। Only then you would become a beautiful butterfly coming out of that shell. और तब जाके एक खूबसूरत तितली के तौर पे आप उस सेल से बाहर निकलेंगे। Today people may not see you as a beautiful. और हो सकता है कि लोग आज आपको एक खूबसूरत इंसान के तौर पे ना देखते हैं। Today might people see you as a some caterpillar or some small insect, insignificant being. आज ऐसा कोई भी विशेष चीज ना हो, ऐसा एक कीड़ा या एक साधारण इंसान के रूप में देखते हैं हमें। But if you allow God लेकिन अगर परमेश्वर को अनुमति देंगे and go through God's process of metamorphosis, और परमेश्वर का जो प्रतिक्रिया है परिवर्तित होने का, रूपांतरण you होने will का, change into a magnificent creature or creation of God, a beautiful in Christ creation. May the good Lord bless you. और अंत में आप एक ऐसा अद्भुत सृष्टि बन जाएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको बनाया है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करने पाए।